ati ladak si youth sangma laman skap chenmo siginok kabung atai nilam jitok siginok le kabung atang ISL Indian Super League, Indian Women League, kabung national chanok Santosh Trophy nok ta diring dalon ni palangati ladak representatives nok tiba ning ni tuje che sangmala yang nisa sangma zutugus no mate All India Football Federation of Football bo ladak na most second follow game siginok le kabung ati ladak la nge sambe na first follow game sidu kabung ati youth sangmala mani jala platform siginok te fengi ja sangmala ning ni tuje che kabung te ngata ata mani rox sangme mi chenmo jin chi chungji ge sangme ngaja rox mani sangme ning ni ala le mani ngaja support te fe ding ngaja ning ni tuje che. Recently in the month of February we got the affiliation from All India Football Federation, and I would like to congratulate each and every member of Ladakh Football Association and all the football community of Ladakh. As far as Kargil is concerned, I would like to mention some achievements after the formation of Ladakh Football Association. Before the formation of Ladakh Football Association, we had only 10 to 15 clubs there, and that of boys category. But after the formation of Ladakh Football Association, at present we have 30 plus clubs in Kargil, and that is a great achievement. The biggest achievement of Ladakh Football Association is that before the formation of Ladakh Football Association, we have now girls team there in Kargil. But after the formation, recently we held a football tournament under LFA there in Kargil. A total of 4 girls team has participated there. This number will increase inshallah in future. And in the end, I would like to thank the members of Ladakh Football Association to support the footballers of Kargil, and I wish that they would help us in future also. Another good news for the footballers in Kargil is that they have seen a football ground here in Spituk. Same football ground has been sanctioned for district Kargil. आज बहुत ही हर्षोल्लास का वक्त है, क्योंकि जैसे कई सालों पहले भी हमने काफ़ी बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और इसी जगह पे हमने कई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब हमने इस बात की घोषणा की थी कि हम लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं, जिसके तहत हम लद्दाख के फुटबॉल को एक नेशनल लेवल पे ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज कई सालों की मेहनत के बाद बहुत खुशी है हम सब के लिए और पूरे लद्दाख के लिए भी, और ख़ासकर फुटबॉल के गेम के प्रेमियों के लिए, क्योंकि जिस सपने को लेकर हम कई साल पहले इसी जगह पे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, आज उसी सफ़र का जो पड़ाव है, ये नहीं कहूँगा कि हम आखिर पर पहुँच चुके हैं, पर उस सफ़र की शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हो चुकी है। और एसोसिएशन ऑफिशियली एफिलिएट हो चुका है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। तो उसका सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि अब हमारे लद्दाख के जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़की हो, और जो मेरे सहयोगी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो कारगिल से हैं, उन्होंने कहा कि कारगिल से भी लड़कियों की टीम निकली है, और कारगिल में आज 30 से भी ज़्यादा के फुटबॉल टीम हैं, और लेह में उसी तरह कई सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, फुटबॉल टीम है। और लद्दाख के फुटबॉल का स्तर हमेशा से, क्योंकि हम एक हिमालयन रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो हमेशा से ये माना जाता है कि हिमालयन रीजन के लोगों में जो नेचुरल स्टेमिना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपके नेचुरल स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पर कभी हम लद्दाखियों में हमेशा से वो प्रतिभा ज़रूर रही है, पर हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम उस प्रतिभा को आगे ले पाए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि अगर कई साल पहले हमें अगर एफिलिएशन मिला होता तो इंडिया के कई बड़े क्लब्स में हमारे लद्दाख के बच्चे ज़रूर खेले होते, शायद राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चों ने इंडिया को ज़रूर रिप्रेजेंट किया होता। पर जो भी कारणवश से हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, पर अब जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनको ज़रूर मौका मिलेगा कि पहले हम राष्ट्रीय लेवल पर पार्टिसिपेट करें और
पर्सनली ऐसा ज़रूर मानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लद्दाख के बच्चे फुटबॉल में ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद कई स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने, चाहे वो एथलेटिक्स हो या साइकिलिंग हो या आइस हॉकी हो, इसी तरह कई खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और उसी तरह आप जितने भी लद्दाख के फुटबॉलर्स हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। समय संगल्ला तेनिंगता है मीडिया लंग्यास लंगे थुकजेचे जुन तेनिंगी जाय का समय इकांगे शॉर्ट टाइम जिना नगी जाय को जुचेस पिकास को जसबा तेने कजुगिंग लद्दाख ला यूनियन टेरिटरी साथ थोप टेस्टिंग बोने तेने गोमारंग तेनिंगता लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ला तेने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नगे पो एफिलिएशन चाचेस पिका नगे संगमे संगल्ला तेनिंगता है लद्दाख से उसक्यों लद्दाख से एमपी स्पलजम सिंह नमग्या स्कुंदुन yang rangsyong sospet depon kata shigal san skundun khongula tene mixali thukjeche marjante jugojot te khongone marjante ma person ma pozate khone ma recommend ma strongly recommend zate tene diringata football all india football federation na po diringata affiliation song to na tene khong iske scrutinin nyampo tene ngata UT Ladakh secretary उसको रविंदर जी अंग मार्शंटे को एक अंगाया मार्शंटे रिकमेंड नंग कोने मार्शंटे साथ सालते हो तेना चोला तेने गाता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर गाला किरण रिजिजू जी इंडो या तेने गाता अनुराग ठाकुर जी इंडो खोंग बुनिया तेने मार्शंटे गाया ये एफिलिएशन चाचे सिना मार्शंटे कोने गाया 7 साल मार्शंटे कोने रिकमेंडेशन मा स्ट्रांगली जाते तेने खोंग ने स्कूटिन ला तेने खोंग संगे स्कूटिन ला तेने गाता दिरिंग लद्दाख से ऑल लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन बो तेने गाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नगे पो एफिलिएशन सोंतेत तेने न्याम्पो लद्दाख से चालियांग से लोकटुक छंगमाला तेने छंगमाला ताशिस दिलेक जुन बुमबारिक जुन तेने गाता देम्बे तेने गाता योंचे चने ठुगुनि फियम मा हंटे गाता प्लेटफॉर्म मा छनमो जिक थोपतेनो तेने गाए फुटबॉल एसोसिएशन ने पूरा टीम बे पूरा गाए लोकल फुलत तेने योंचे चने तुसिना तेने गाता लोकटुक छंगमाला ngata ya pes met pa kargil ne indo len indo changtang ne indo nubran indo zaskar ne indo changma suina ngata saliot suina ngata azugyot khyudyot te thugul ngata chance tang te te ngata kazugi national level gal se chesi fem ma shante ngata da ladakh se lok tugul la tenang mixali footballer gunla tene dembe ngata platform ma chenmo jik thopteno tene ip all india football federation gyu te tene ngata national level ka kazugi ngata butkande logo ne ngata national ngata team jina ngata in team kal te ngata azu kong participate chospin in ngata yongche chen tus gune na tane ma ngata tournament league je ngata ji chat nang tena ngata gyalkhan ngata na participate choche se na ngata ma hante azu thop ngata प्लेटफॉर्म मा छनमो जिक थोपते तनो तेनेंगे तेना न न्याम्पो तेनेंगा ता लोक तेया न लद्दाख से लोक टुगुन लद्दाख से ठुगुन ला तेनेंगा ता स्टैमिना मा ग्याला युचेस पेजास्ते तेनेंगा ता लोक ngate ठुगुन ला तेने देम्बे ई फुटबॉल लिकने तेनेंगा ता लास्ट पाउने फिया मारि तेनेंगा ता ग्यागर तानी का ता चमशिक नेशनल लेवल से ना ते का ता ठुगुन ला फंतोक्स मारि छचेनो Ladakh has been invited by AIFF to participate in the Junior Under-17 Women's National Football Championship. We will soon be holding open trials for the same in Leh and Kargil. Details will be shared by our coach Zepak. We are making history here, sending the first football team from Ladakh for the nationals. And this is just a stepping stone to what we have in future for the footballers of Ladakh. I would request our executive body and LFA members to unveil the official jersey for Team Ladakh for some photographs. एप्लीकेशन होने के बाद ये हमारा पहला टूर्नामेंट डेब्यू टूर्नामेंट जो कि हीरो जूनियर अंडर 17 वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी आसाम में हो रहा है। तो इस टूर्नामेंट डेट जो है वो 5 मई 2022 टू 24 मई 2022 है। और इसके लिए इस टूर्नामेंट के लिए जो ओपन ट्रायल्स ले करगिल दोनों में होंगे और उसका डेट जो है 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2022 और जिसमें 4 और 5 जो डेट है वो उसमें हम जितने भी प्लेयर्स लड़कियां हैं ले में करगिल में उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2 दिन में होगा।
पहले 2 दिन में। उसके बाद जो है वो फिर रजिस्ट्रेशन जो बंद हो जाएगा, उसके बाद उनका ट्रायल होगा 9 अप्रैल तक। और इस ट्रायल को हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में। और जो पहला फेज जो है ओपन ट्रायल का, उसमें प्लेयर जो प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2005 टू 2007 31 दिसंबर 2007 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो नेशनलिटी जो भी प्रूफ है, राशन कार्ड या पासपोर्ट, इंश्योरेंस पेपर, अदर वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आधार कार्ड जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे इस ओपन ट्रायल में। और आप बीओडी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल से मिलता है या हॉस्पिटल से मिलता है, जब बच्चे जब बोर्न होते हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। और जितने भी जो प्लेयर्स लड़कियां जो यहाँ ट्रायल के लिए आएंगे, हमें हम उनसे जो कोविड वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो दोनों चाहिए होते हैं, जो चाहिए हमें यहाँ ट्रायल के लिए। और जो सेकेंड फेज जो है उसमें हमारा नेशनल कैंप में क्या है कि जितने भी प्लेयर जो इस एज कैटेगरी में फोन करेंगे और जो कि स्पीडो के टूर्नामेंट पे, स्पीडो के एस्ट्रो ट्रक पे हमारा जो ट्रायल हो गया वहाँ पे नेशनल कैंप लगेगा। उसके बाद जितने भी प्लेयर आने के बाद जो हमारा नेशनल कैंप है वो 11 अप्रैल टू 1 मई, जितने भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है, जितने भी ट्रायल के लिए लड़कियां आएंगे तो उनका जो कैंप चलेगा वो 11 अप्रैल 2022 टू 1 मई 22। उसके बाद उस ट्रायल में जितने भी प्लेयर करगिल या लेह से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स आएंगे, वो प्लेयर्स और ऑफिशियल कोच, असिस्टेंट कोच या फिजो जो भी टीम के साथ जो गुवाहाटी असम जाएगा, उनका एज ए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उनका नाम अपलोड होगा, ठीक है जी। फिर थर्ड फेज में हमारा हो गया टूर्नामेंट में प्लेयर्स और ऑफिशियल दोनों 2 मई को यहाँ से डिपार्चर असम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ लेह से डिपार्ट करेंगे। थैंक यू। पहली बात तो समय बहुत लगा, इस चीज़ में लगा फुटबॉल फेडरेशन करने में। अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इसके बाद जो स्टेप वो क्या होगा। जैसे लद्दाख में भी फुटबॉल पीक पे है, जो हमारे यंगस्टर्स है, जो पहले के जो जनरेशन उनका तो अब कुछ नहीं कर सकते। इनके बाद एक आप फुटबॉलर्स को ये बताइए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में रजिस्टर होने के बाद किस तरह के फायदे हैं और किस तरह के आप कहाँ तक आप जा सकते हैं, थोड़ा उसको डिटेल में बता सकते हैं। इसमें ऐसा है ना, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ हमारा एफिलिएशन होने के बाद जो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने चलना है और उनके जिस तरह हमें डायरेक्शन आते हैं उसी हिसाब से हमने जो भी बच्चों को जो भी मतलब कहीं लीग पे जाना होगा तो प्रॉपरली हमने बच्चों को कोचिंग करके उसके बाद ट्रायल करके उसके बाद हमने सिलेक्शन करके फिर हम भेजेंगे। इसी तरह अभी हमें हर एक क्लब के साथ हमने उनको कोचिंग किस तरह करना है, क्या करना है, हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बायलॉज के हिसाब से हमने पूरा चलना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, LFA का हमारा जो आगे का जो रोड मैप है उसमें मेनली 2 पार्ट्स में है हमारा जो, क्योंकि आप एफिलिएशन होने के बाद सबसे पहले तो हम AIF का जो पूरा ईयरली कैलेंडर है, जैसे कि अभी अनाउंस हुआ कि हम जूनियर नेशनल की लड़कियों को भेज रहे हैं, उसके बाद सीनियर नेशनल आएगा, बॉयज़ का सब जूनियर आएगा, फिर गर्ल्स का सीनियर आएगा, फिर बॉयज़ का सीनियर आएगा। हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो AIF के कैलेंडर के हिसाब से ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज करके टीम बना के टीम को ट्रेनिंग देके टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाने का है। और हमारा जो दूसरा जो हाफ है LFA का वो है हमारा कि हम एक ग्रास रूट प्रोग्राम चलाने वाले हैं जिसमें हम लेके हर रीजन्स में एक सेंट्रल सेंटर्स और नॉर्मल सेंटर्स चला के वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग देकर और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि उस टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके उसका एक पूल बना के एक सेंट्रलाइज सिस्टम करके वहाँ पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें, ताकि उनके से जब अगले नेशनल्स के लिए जब टीम निकले तो एक प्रॉपर और एक प्रोफेशनल लेवल का प्लेयर निकल के आए।
तो इन 2 भागों में हमने LFA को फिलहाल हमारा जो रोड मैप और आगे का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सन गेम्स फंडिंग प्रॉब्लम डोनेशन सेलेक्टेड प्लेयर फुटबॉल मुझे ऑल LFA फंडिंग क्या UT एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या कोई स्पॉन्सरशिप ini LFA is positionally mana mai affiliation to bisa ngala ngaja ni sa sama pata no kala ngaja sponsorship jigin chi ngaja ngaya ka zuk ngaya film na support tokli takabo all India football federation na ko affiliation song to yong ka ngaja government UT government ala de ka ngaja program tukle funding tu parte na all India football federation na so income bo generate which is like different ways tukle kabo club club registration fee jono student register fee jono ine CSR funds mangko ni chamsing aje association bo aje active duk nyanna chamsing ai philo sonte mangcha CSR funding ga tukele dilan ngaja mata lada satang da sana sports council form ma chano sports council form chana ka bo mata isu jono ya games su invitation games jono so government recognized games jono kabo government recognized games yod na tebo government funding jono le to government na khora funds rig kya tate ka aid chogos na te ngaya association la ji pending ji ping ho sano le अरे हमसे चने प्लेयर नहीं किया थी मेरा थोड़ा ऐसे tena isu no kaya ngata team jigi kane ngata tayar choste ngata Delhi cheddo ya karu chana national level ji se acha na nyampo tene gazu ngai naning gudgang ngata team ji kalke te team bo ngata under 17 ngata team ji ngata boys under 17 ngai team ji kalpin te zane ngai ransion sospa ngai request jos min tene komune tene recommend jos te UT administration Ravinder Skundune khone ngai chalo chaches na yong chese tigare pene ko ngata UT administration chone tugun la tans tene ale tena chola tene yong chese ne tu sinang tene ngata UT administration ngai ma sante Ravinder Skundune ngai teo joraki ijachi support jo ngai chone pura support chen tene khongoni ngai ma sante rewan ki yong chese tu sinang ngata chi team ji kala nang tene ngata tuguni ka kharcha bo tene mangcha tene UT kan to beto tene mangyung ngai ra tene kazuk jo na te ngai ra ikane ngai sponsor chalte jo na ngai to just ngai fulchan kale da baksa nije e association form just Ladakh football association form just da players ma ko je nije selection na pitching gun zache no gala ina mata town area na cham jido te ona shayad mata internet access na chi samay jaste information thop chalo ngane ina gamyul gon la kalena rural gon na ma ko talented yo do mata players gon te on pitch che sa nije yang chalo plan special plans video dale ngai already changta na ngai club yot no ya tena chola nubre na ngai yot zanskari na yot ngai karung sangai ra club yot no khongun gyute tene ka thugun gyala yot te on ngata ko select choche sina selection choche sina tena ngai club gun gyute choche no la yang infrastructure ko ko shiyo da ngata da sa ka level na ngata football ground nis to shi ya su to shi yot no gamyul gon la nije ko shi infrastructure plans adat la dasa sapatarung ngata infrastructure botem shi ground met no tena kazu ngata yul gune gamuni na ngata school gune na ground kazu ri hot tena chori mane ma ki gyala ground jik mane met no tinju tiwa chichik ni kanele da sa nije football team jingata women culture no gala le yuspa te man payang yong chan tu sa ma ko yodo is selection trial be na tam je transparency on je no te ka su process yodle tena ngai pura chamsi ngata leni on to kargil ni on to kan yo ngai te on la nyampong ai kane UT administration ngai use te jua pulte tena ngata youth sports se khata shilesh ko da to ya khone ngata technical mish ko da to khon angi ka ngai uskyo use te ngai selection choza ne pura bas apta ngai video na nyampo kazu ngata video choste tene expert mongpo ngata khons te leni do kargil youth sports ngata jua pulte khon ngai ka iskyo jin tena to leni ngai kazu ngal ngai chos pente zane ngata youth sports te khata shilesh ko to kazu ngai selection choste under 17 boys khers zane tene ngata tena to ngata Ladakh se ma footballer ningpa ka mama chos ngai ka skyo juste kona ka skyo te kona ngata selection chos na kon skyo te pinel tena to ngai yongje chane tu gun kazu ngal ngai transparency na bochos tena to la yongje chane tu sina ngai selection bo ma transparency bote ka thugune na dembe
क्यूदियो तेना टू ngata gen la kalche ngata pura कोशिश बोचे सोंगे रेवा छिन मोइन yang tiga yang cuma tinggal tak ini je probable team dia coaching salah ni ada Actually, ngale question because it up to well. The selection trial with the transparency use starts the kid that any ala trial chas ane two ne trial names ane ini ngaya coach ika shina tuk jigo dia ini ngaya pamphlet ji to tana ko thui dress up tas de mentality ka do physical ka do या के passing kicking so हर कोच अलग अलग रंगना किताब तुमसे नहीं आते पेपर को तुमसे इन्हें कोच समझ रेरे सुनते हर ठुई का सुनते रंगना स्थान हो जाते तेना हुआ मैं ग्रेड बोलते पुअर एवरेज गुड एक्सीलेंट देते हैं इन्हें गांस पोषण से चिच्ची ये सास के कोई किकिंग को ठीक तो करने की गुड गट्टी तंग चल रहा है इन्हें ते नियम कोच चिकते का सुनते थे ठुआ नाम की किकिंग को इशू के बेशक के जैसे कि ठीक बैट देते तंग के यार एवरेज देते तंग के इनमें दिन समय पूरा समय ट्रायल छाड़ते इनमें समय दुख से इनमें पेपर को तुमने पढ़ते हैं ऐसा चीज़ नहीं टू काव जब को पोजीशन को मार थोपते जैसे कि टू चीज़ कोर्स समय एक्सीलेंट तंग से ना की ना इनते टू वो जो मैं सिलेक्शन वो बोलते थे इसका कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप कह रहे हो कि किकिंग पासिंग और व्हाटएवर इसमें जितने भी यहाँ कोचेज हैं वो देखेंगे कि इसका कंट्रोल कैसा है पुश पास कैसा है रिसीव कैसे करता है और सोचता कैसा है गेम के बारे में कैसे सोचता है एंगल देखता है कि नहीं देखता या दूसरे प्लेयर के साथ कैसे बर्ताव करता है उसका पहनने का ढंग बोलने का ढंग ये सब जाके अभी तो बाहर जाके दूसरे बड़े टूर्नामेंट में फिर जाके फर्क करेंगे तो करगिल से बहुत सारे अभी खिलाड़ी आने बाकी है जब ट्रायल शुरू होंगे तो इंटरेस्टेड जो खिलाड़ी आएंगे तो उनको किस तरह के सुविधा दिए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा क्या एलएफ उसको स्पॉन्सर करेगा या इंडिविजुअल उनको आना पहले तो उनका वहाँ ट्रायल होगा कारगिल में पहले इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें लगभग 4 गर्ल्स टीम ने पार्टिसिपेट किया था पहले तो बिल्कुल ही नहीं था कारगिल में गर्ल्स की टीम तो अब उन 4 अभी 6+7 कुछ ऐसे टीम है जो लड़कियों का अब उनका पहले ट्रायल होगा फिर उनमें से जो अच्छे खेलेंगे कोचेस है LFA के वहाँ पे हुसैन है इलियास है जावेद है वो सब वहाँ देखेंगे उन जो प्लेयर अच्छे खेलेंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा तो उनको सिलेक्शन करके LFA के थ्रू उनको लेह में लाया जाएगा यहाँ स्पीतू के ग्राउंड पर उनका 1 महीने का कम से कम जो लेह से सिलेक्ट होगा जो कारगिल से सिलेक्ट होगा उनका 1 महीने का यहाँ पे कैंप होगा फिर उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्ट